جی بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جو بات ختم ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ہم نے امداد سمرو صاحب کی طرف جانا ہے, اینا نے مائک پھاڑ لیا تو پھر واپس نہیں کرنا. امداد صاحب دیکھیں آپ نے جو آغاز کیا تھا نا, آغاز کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں کرنی چاہیے تھی, حکومت کو کرنی چاہیے تھی, وزیر دفاع بیٹھے وہ کرے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایک روبوٹ بنایا گیا ہے وہ گلے پڑ گیا. جس طرح پروجیکٹ سازی کی گئی ہے ایک ایک ادارے کے اندر, اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر بھی صفائی کرنی پڑ رہی ہے, عدلیہ کے ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, آج بھی بیٹھے ہوئے, ہاں جی بیٹھے ہوئے, بلکہ دما چوکڑی میں چاہیے. اب اور دوسری بات یہ کہ وہ روزانہ بیٹھ کر, جو رضی صاحب بات کر رہے تھے کہ روزانہ بیٹھ کر اندر سے نام لیتے ہیں عاصم منیر, جنرل عاصم منیر مجھے مروانا چاہتا ہے, میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا ان کا. تو وہ تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, وہ گھسیٹ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت اسپیس ہم نے واپس لی تھی, سویلین اسپیس تھوڑی بہت لی تھی, وہ اس صاحب کی انتہائی عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے. تو امکانہ کہہ رہے ہیں, چلے میں یہ نہیں کہتا, لیکن یہ جو سیاست انہوں نے کی ہے اس میں دوبارہ گھسیٹ کر 100% اسپیس ان کے حوالے ہو گئی ہے. تو ظاہر پھر وہی پریس کانفرنس کریں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے مذاکرات ان کے ساتھ کرنے ہیں. اب 9 مئی جو ہے, 9 مئی بذات خود جو پروجیکٹ سازی کی گئی تھی اس کا وہ تھا نا, نتیجہ تھا, خمیازہ تھا, شاخسانہ تھا, جو بھگتنا پڑا ہمیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی ریت ہم نے تو اپنے ہوش میں سنی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, راشد قریشی صاحب. اچھا پھر جب پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے تو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر معاون کے طور پہ وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. جو آپریشن شروع ہوئے تھے نا, اگر کوئی سوال فوج کے متعلق ہوتا تھا تو پھر قائرہ صاحب یا شری رحمان صاحب یا متعلقہ وزیر کہتے جناب آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. اچھا مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, بدقسمتی سے کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ ہی کریں سب کچھ. اب اتفاق سے وہی ان کی حکومت ہے, اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس اگر اس طرح کرنی تھی 9 مئی کے حوالے سے, تو یہ خواجہ آصف صاحب ٹویٹ بڑے اچھے کر لیتے ہیں, روزانہ بتاتے ہیں نا, وہ کرتے اور اس کے اندر پولیٹیکل جان بھی ہوتی. اور وہ کھل کے, سر میں کہہ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیکھیں نا, ایک آپ نے بات کی کہ وہ سوال کیوں ہوا, بھائی سوال تو ہوا, وہ ویڈیو کون بنا کے لایا تھا پہلے, جو آپ ویڈیوز دکھا رہے ہیں سوال کے جواب میں 9 مئی کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ تیاری کے ساتھ آئے تھے نا کہ آپ نے 9 مئی پر بات کرنی ہے. دیکھیں رضی صاحب, یہ کانفرنس کی پریس کانفرنس تھی ہی 9 مئی کے اوپر. نہیں, یہ پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر نہیں تھی. یہ پریس کانفرنس آغاز ہوا تھا آپریشن جو ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے سوالات ہوئے تھے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ فوج کو گھسیٹا گیا ہے سیاست کے اندر, وہ ظاہر ہے وہ آ گئے. 14 اپریل کو پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ جی ہم نے سیاست سے توبہ کر لی, ہم 2022. اس کے بعد باجوہ صاحب جاتے جاتے خطاب فرما گئے کہ ہم نے 75 سالہ تاریخ میں اپنی غلطیاں کی, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, ہم پیچھے ہٹے. اس وقت بھی میں نے یہاں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہونا مشکل ہے, وقت لگے گا, ٹھیک. اور پھر بدقسمتی سے یہ صاحب اب پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کے آ گئے, کیسے لیڈر بنے, کس نے بنایا, سب کو پتہ ہے, وہ ان کو گلے پڑ گئے. تو پھر وہ فوج آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجبوراً اب بات کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اگر یہی جگہ سیاسی لیڈر لیں نا, یہی بات پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے 9 مئی پر, تگڑا اجلاس ہوتا, تگڑی تقریریں ہوتی, تگڑی تقریریں ہوتی, نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اس دن؟ کرتے بالکل, شہباز شریف صاحب کرتے, بلاول بھٹو کرتے, زرداری صاحب کرتے, پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا. نہیں صدر کیوں نہیں کرتے, ریاست کا معاملہ ہے, کیوں نہ کرتے, ریاست کا معاملہ ہے, سپریم کمانڈر ہے سر, سپریم کمانڈر, سپریم لیڈر نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں مجموعی طور پر ایک تو ظاہر ہے وہ جو پریشر ہے نا وہ ہمارے سیاستدان زیادہ لے گئے ہوئے, اور اس کے نتیجے میں فوج کی اسپیس زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جو کہ کم ہونی چاہیے. صحیح, تو اصولی طور پر نہیں کرنی چاہیے تھی پریس کانفرنس. اچھا ایک بات یہ ہوئی کہ اپنا پہلے تو یہ بتائیں آپ کو پریس کانفرنس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ دوسرا میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے تو 2-3 جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو آج سمجھ رہا تھا, نہیں میں نے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی ہے, میں وہ بات بتاؤں گا آپ کو. میں تو آج سمجھ رہا تھا کہ آپ سارے بڑے نام بیٹھے ہیں, آپ سارے بڑے نام بیٹھے ہیں. آج آپ کوئی 9 مئی ایک بہت بڑا برا سانیہ تھا, خدا ہماری زندگیوں میں یا ہماری نسلوں کی زندگیوں میں یہ دن دوبارہ کبھی نہ لائے. سانیہ بری ترین چیز کو سانیہ کہتے ہیں. سر بہت 71 سے بڑا تو نہیں تھا, لیکن سر ہماری جنریشن کا بڑا برا ترین. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ 71 کی تاریخ دہرا رہے ہیں ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. لیکن میں ان کو 71 کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے.
अच्छा सर, मैं समझ रहा था कि आप सारे लोग, उनके बुजुर्गों ने भी नहीं बताया उनको। अच्छा मैं समझ रहा था कि आप सारे लोग कोई वे फॉरवर्ड देंगे, सारे लोग कोई वे फॉरवर्ड देंगे कि कौम को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इससे निकलना है, कैसे इसके मुजरमों को मुल्ज़िमों को सज़ा देके हमें आगे निकलना है। लेकिन बदकिस्मती से आपका तो मौजू ही शंदाना गुलजार थी, आपका गुफ्तगू का महवर शंदाना गुलजार थी। ये मेरे लिए बड़ी अजीब व गरीब बात थी कि आपको कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि ये वाक़या हुआ है, इसके जो जिम्मेदार हैं इनको सजा दें, और कौन है जिसने 1 साल बाद, अभी तो चलान ही पेश नहीं हुए, हैरत की आप रहनुमाई करते हैं। हैरत, मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सीखता हूँ, मेरे सारे सीनियर हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात यह कि मुझे हैरत है कि आज हमें IMF मुकद्दस इदारा लग रहा है जो हमारी बहुत भलाई कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते। तीसरी बात, इमदाद सुमरो साहब, सुन ले, मैं बताता हूँ जो रज़ी साहब ने की कि वो कह रहे हैं कि मामलात हमारे ऐसे हैं। तीसरी बात, इमदाद सुमरो साहब, पीपल्स पार्टी ने साथ बिठा के DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, नून लीग ने कहा तो सही कर लो भाई, लेकिन जो इंसानी आज़ादियाँ हैं, जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं, उनको जुल्म इमरान खान ने उस पर किया है। भाई कहीं तो अपनी गुफ्तगू पे रुके ना यार। देखिए, आप लोग एक को टारगेट करके बैठना है, ये नहीं तरीक़ाकार। आप बात करें, मुस्बत बात करें, जो गलत है वो गलत है। सानिया नौमई गलत है तो गलत है, इसको कोई इसको डिफेंड कर नहीं सकता। इमरान खान साहब के बारे में अगर हम फौरी तौर पे मुतालबा कर दें, उनके खिलाफ जितने केस हैं वो वापस लिए जाएं। क्यों, आप कौन होते? एक मिनट सुन लो यार, फिर वही गल, फिर से की करिए। आप ये कहें कि आप अगर नहीं सुन लेना बात, अगर हम ये कहें कि जी के ये बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। नहीं। देखिए, आईन पाकिस्तान की अदलिया बैठी है, अच्छे बुरे फैसले आप करें, निपटाए ना यार। ये चीजों को लटका के कौम को सूली पे लटकाया हुआ है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये आपका बेहतरीन मशगला हो सकता है सर, जिनके पेट भरे हुए हैं, ये उनका बेहतरीन मशगला हो सकता है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आगे निकले सरकार, दुनिया कहाँ जा रही है? ये जुमला भी हम 60 साल से सुन रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और आबादी 25 करोड़ हो गई। आबादी 25 करोड़ हो गई है। नहीं, ये हाथ पे हाथ मारने वाली बात सर, ये हकीकत है। हमने ऐसे शुरफा को, और दूसरी बात ये, वो शानदाना गुलजार का ज़िम्नन खुदा जिक्र गवाह, हुआ था। ऐसे शुरफा को छुप के भीख मांगते हुए देखा ना, वो बेचारे। और ये इमरान खान की हुकूमत के बाद हुआ है। सर आपने हर बात डट को के मजाक भीख मांगी। ना सर, उसने आपके मेरे बच्चों के लिए मांगी। ये उस निमल यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, शौकत खाना में गरीब का इलाज हो रहा है, उसने अपनी जात के लिए नहीं मांगी। सर फीस देता है गरीब का बच्चा। यहाँ पे 80% मरीजों का इलाज जो है शौकत खानम के अंदर 20 बेड थे, फिर 80 हुए। उसने पूरी दुनिया को लूट के कहा गया उस बेड। सर मैं जानता हूँ, मेरे गांव का बच्चा, उसका वालिद गधा रेडी चलाता, उसके बेटे का शौकत खाना में इलाज हुआ है। 8 बच्चे होते हैं सर, 8 बच्चे होते हैं सर, एक भी होता है तो बहुत है। एक इंसानी जान बच जाए तो पूरी कायनात की नहीं, पूरी दुनिया को मांग के ये बात आप क्या कर रहे हैं? मुझे मैंने आप लोगों की कितनी सब्र के साथ बात की। के बच्चे जो हैं उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दी यार। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी इंस्पायरेशन कि अगर भीख मांग के वो अयाशी कर सकता है, जिंदगी गुजार सकता है, तो भीख मांगिए, रज के मांगिए, हर जगह के मांगिए। ऑनलाइन भीख मांग के लोगों ने उसने शौकत खानम अपने साथ नहीं ले जाना जी, उसने निमल अपने साथ नहीं ले जाना। बाकी को उसका CEO बनाया, अपने मामू को उसका CEO बनाया। आपको बना दे हजूर। भीख मांगने से ज्यादा अहम बात यह है कि उसकी आड़ में 4 साल स्क्रीन पे रहे, अखबारात में रहे। 4 साल 24 साल वो मैं अच्छा चलो यार, अच्छा एक तरफ आप लोग मुझे देखिए, मुझे यार सर, मैंने आप सारे दोस्तों की बात इतने सब्र के साथ सुनी है, मैं एक जुमला बोलूं तो फिर बस एक गल तो सुन लो ना सर, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਲੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਚਲੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। सर दूसरा, नूरुल्लाह साहब ने बात की कि अगर पॉपुलर है तो क्या करें, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी लोग थे। भाई अल्ताफ हुसैन साहब, जब मैं तो कराची में देख के आया हूँ कि जब बोरी बंद लाशें होती थी, ये TT पिस्तौल, उस वक्त तो सब कुछ सारा कुछ कोई बोल ही नहीं रहा था। बस एक तकरीर की उन्होंने, फिर उसके बाद तो कट ऑफ हो गए। ठीक है जी, जाओ
सर उस वक्त रोके ना जब कोई जुल्म ढा रहा होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने सर दूसरी बात है, फिर आप पुलिस कहते पर हैं पेट्रोल इमरान खान फेंके। पॉपुलर है तो क्या करें? सुने, इमरान खान पॉपुलर है तो क्या हुआ? एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान वोट की ताकत से बना यार था। मेरी बात सुने, भाई लोगों के फिर एक फैसले मिनट, को मेरा तस्लीम मेरा करें ना। मेरा नहीं, कौन सा फैसला? 8 फरवरी 2024 का फैसला। तो वो आ गया है, 92 सीटें उनके पास हैं, वो मिलाएं। पार्लिमानी सियासत में क्या आप 82 है ना, मिलाएं किसी अच्छा पार्टी नहीं को मिला सकते हैं। देखे बात सुने, जो फार्म 47 को कहाँ दफन करेंगे? वो है केड़ा फार्म 47 47 सर वो क्या है? 47 क्या है? वो क्या है? बताएं। 47 क्या है बताइए। आप बताएं ना, फार्म 45 क्या है? नाम आपने फार्म लिया है। 47 ये है, फार्म 47 ये है जी, कि बताइए। जो लोग फार्म 45 में हार गए हुए थे उनको फार्म 47 में जीता मैं बताऊं 14 रुपए के, फिर मैं अरबों रुपए बताऊं, गांव के क्यों जाया क्या करवाए हुआ थे? है? अल्ताफ, मैं बताऊं, उल्फत, मोहब्बत। 45 बना के भेजे हैं साफियों को जो स्क्रीन पे बैठे हुए थे, और आप उन जाली 45 फॉर्म्स की बुनियाद पे ये 47 वाला मामला उठा रहे हैं। आप इंतखाबी उसदारी में क्यों नहीं जाते? कितनी उसदारी हो? 22 सिर्फ 22 हुई हैं, सिर्फ और आप आप- 180 सीटें मांग रहे हैं। सर आप सारे टेक्निकल लोग हैं, आप सारे मुझसे सीनियर है, टेक्निकल लोग हैं। देखिए कौमी असम्बली का एक हल्का होता है, उसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, ऐसे ही है ना सर? ये मुझे साइंस बता दें कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादा लाहौर में पॉपुलर लीडर ओन चौधरी है, नीचे दोनों एमपी हार गए, वो जीत गए, कैसे जीत गए? मुझे साइंस समझाएं सर। ये फैसला आप करेंगे या मुझे अदालत साइंस करेगी? समझाएं। ये फैसला आप करेंगे क्यों? या मैं अदालत वोटर हूं, मैं नहीं करूं, नहीं, मैं अदालत- नहीं करूंगा तो कौन अदालत करेगा? करेगी, अदालत करेगी। सर जाके सर, जाके सर challenge आप जाके करो। चैलेंज करें। हर बात आप अदालत करेगी। उल्फत भाई थोड़ा अदालत एक मेरा मिनट सर, भाई आप उधर सबको पता है कि क्या क्या भाई बात है। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन भाई इसलिए कि एक शख्स या एक जमात आप हम एक मिनट, ये मैं गलतफहमी दूर कर दूं सर यार। माशाल्लाह उल्फत फिर एक मिनट, मैं ये गलतफहमी इनकी दूर कर दूं। एक बात तो ये है कि ना हम इमरान खान साहब को जानते हैं, ना हमें उनसे कोई गलत है, ना कोई दुश्मनी है। हम उस पैराडाइम के दुश्मन हैं जो कभी अल्ताफ हुसैन को हम पे मुसल्लत करता है जी। और कभी इमरान खान को। अगर आपको ये और बात भी समझ- बहुत सारे किए, ये 2 ही किए। जो नवाज बाकी शरीफ किए भी दो ही किए। जो नवाज शरीफ बाकी भी किए, किया। नवाज शरीफ को भी किया हमने, IGI बढ़ाई थी। मुखालफत की थी हमने, IGI IGI बढ़ाई। मुखालफत की सर थी। एक नाम लेना, हाँ, और तो भी ले लोग- दे रहे और हैं। भी लोग हैं। अच्छा, ये और- 3 नहीं है, और भी लोग हैं। नहीं तो आप मानने को तैयार हैं कि इमरान खान साहब उसी पैराडाइम की पैदावार हैं? आप मानने को तैयार हैं? सर जो भी है गलत है, ये जो भी है जो भी है नहीं, सर मैं नहीं, ये अपनी अगर इमरान खान आपकी तो हाल लिटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर अगर कोई नहीं, मैं कौन होता हूँ मुझसे फैसला लेने वाले? मुझे मैं कौन होता हूँ? मैं तो आप साबित क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की आवाज, अवाम ने उसको वोट किया। आप फैसला करेंगे सबसे ज्यादा के बारे में आप हमारे चले सर। मामले में क्या लिखा है? हमें क्यों कह रहे हो? यार नहीं हमें क्यों कह रहे हो? नहीं लिए, सबसे ज्यादा नहीं लिए, नहीं लिए, जालसाजी की है तुम लोगों ਸਰ ने। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ यार इस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। पहले उसको ख्याल नहीं मैं इसको नहीं कर रहा। मेरा ख्याल ये है कि उल्फत जो बात कर रहा है उसको उसकी बात करने दें, हाँ। उसके बाद उसको जवाब दें, ये नहीं है, ये simple। लड़ाई ना करे, क्योंकि उल्फत बेशक उल्फत जो लाइन दे ले रहा है उससे हमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये नहीं। अभी तक बात उनकी कंप्लीट थी हाँ, सर। जी, please। आपने 9 मई का यार तू पहले उसे बात पूरी। वो इन्होंने कहा था कि हमें एक कोई रास्ता दिखाना है ना कौम को, दूसरा दिखा दे। सर रास्ता ये है, देखिए रास्ता ये है कि जो लोग साने 9 मई में मुलविस हैं उनको आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा शुहदा, हमारा फ़ख्र है। लेकिन सिर्फ उसी पर रुक के हमने हमेशा यहीं के पे नहीं खड़े रहना। आगे बढ़ें, जो बड़े हैं वो बैठकर बात करें कि ये वाक़या क्यों हुआ था, इसके असबाब क्या हैं, जिन्होंने किया था उनका कला कमा किया जाए। आगे बढ़े, ये मुल्क हमारा है सर, हमने आगे मुल्क को लेके जाना है। इमरान खान का ये इमरान खान सर को इमरान फांसी खान है दिलवाना तो चाहता सबसे ये पहले इमरान खान फांसी को दिलवाना दे। चाहता है। लेकिन एक सेकंड, अगर उसमें इमरान खान है तो इमरान खान को जरूर सजा दें। अगर है उसको सर उसको कोई प्रूव करेगा ना, आप सर हुजूर आप फैसला सुना दें, मैं मान लूंगा। मैं तो फैसले की गल फिर मेरी अगर पे आपको क्यों इतराज हो रहा है? हजूर मेरी अगर मैं सवाल नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं अदालत नहीं हूँ 3 हफ्ते से ज़मान पार्क में मेला लगा हुआ था। उनको बात कर लेने दें। सर मैं अदालत नहीं हूँ, मैं सर सुने, मैं अदालत नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ। जो अदालत है उनके पास केसेस हैं, खुदा के वास्ते इनको निपटाएं। जो गलत है उनको सजा दें, जो बेगुनाह है उनको छोड़ें।
आगे बढ़े यार, हमने यहीं पे रुके रहना है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ मैं ਤੇ ये ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ मैनू सर मैं इतराज करता हूँ, मैं कौन होता हूँ वो काजी फैज फैसले साहब थे, इमरान सर, का इसलिए कि लीडर। फैसले पे इतराज करना काजी फैजी साहब सर, इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर फैसले पे एतराज करना ये मेरा बुनियादी हक है और मैं कर सकता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, बट मैं करता रहूँ। आप सजा दें जिसने गलत किया उसको लटकाएं, आगे बढ़े, यही हो रहा है, ठीक यही होगा। अल्लाह करे वो। सर उल्फत भाई ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया सर। 9 मई वालों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, 9 जिसने किया तो सर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 9 मई से। आप जरा जाइएगा, ज्यादा पीछे न जाए सर ज्यादा नहीं चाहिए सर। मैं वैसे कहा सर, मैं गुजारिश करना बहुत छोटी सी, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है सर। इमरान खान साहब ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और वो लॉन्ग मार्च था पिंडी जाना। किस लिए जा रहा था वो सब जानते हैं। आर्मी चीफ साहब का तकर्रुर था रकवाना। अच्छा, वो बीच में एक अटैक हुआ, वो एक डांसिंग बुलेट आई, वो ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई, जाके टांग में घुस गई। और फिर उसके बाद वो ये भी एक मौजज़ा हुआ कि अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए ना तो वहाँ पे आप वो है ना वो इस तरह से वो उसको प्लस्तर नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब चूँकि एक मौजज़ा खुद भी है माशाल्लाह, तो वो देखें वो उनका इलाज भी फिर उससे प्लस्तर से हुआ। फिर वो प्लस्तर लेके लोगों ने किस तरह से फैज़ याब उससे हुए। तो सर वो सारे किया तो वो रेंजर तक मैं आ रहा हूँ सर। मैं सिर्फ वो 9 मई की वो कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई को बताने की कि सर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मार्च 2022 में 2 बार अटेम्प्ट किया गया। अच्छा, वो समझ जा रही है, बात सुन लीजिए फंस रहे, मैं तो सर, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ ना। अच्छा, उस दौरान 2 मरतबा रियासती अदारों पे अटैक किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, वहाँ पे DIG की आंख ज़ाया की गई, वहाँ पे DIG को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंकी गई। और वहाँ पे वो जो हमलावर थे सर, वो लाहौर वाले नहीं थे, वो लाहौरिये नहीं थे। वो तो किसी तफ्तीश में पता चलेगा ना सर, वो नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो नहीं थे। अच्छा, फिर इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की वो ऑडियो जिसमें वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें कहा था बंदे भेजो, बंदे नहीं आए, क्यों नहीं? अब मैं देख लेता हूँ। सर, ये सारी कड़ियाँ बता रही हैं कि सर वो 9 मई की प्लानिंग की जा रही थी और वो 9 मई को जिन जिन लोगों ने रिएक्ट किया, इन्हीं लोगों ने वो मार्च में किया। तो अच्छा, वो 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक ये भी सवाल है ना, ये इमरान खान साहब उठाते हैं ये वाला सवाल, PTI वाले भी करते हैं, तो वो तो उन्होंने कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो तो की इंक्वायरी हुई? ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके में सारे लोग जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। नहीं, वो इनको लेके गए थे सर, उनको सर। हसान न्याजी को कोई लेके गया था सर, ठीक है ना। यास्मीन राशिद साहबा को लिबर्टी चौक से कोई लेके गया था वहां पे। यहाँ पे किसने कहा था कि चलो कोर कमांडर हो? अबाद फरूक को उस सबसे पहले सर, ये मैंने नारा खुद वहां पे सुना जब वहां पे बात हुई कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे हमने अपना जवाब देना है, तो सबसे पहले अबाद फरूक ने कहा कोर कमांडर हाउस। तो ये वहां से कोर कमांडर हाउस की तरफ निकले। अच्छा, चलें अब जो है ना इमदाद साहब, मैं आप सबसे कम बोलें इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनकी बात बड़ी ठीक है कि इंक्वायरी करें, सजा दें, सजा क्यों नहीं हो रही? एक बात, अगर सजा हो जाएगी तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सजाओं को तस्लीम कर लेगी? नहीं, वो नहीं तस्लीम करेंगे। उल्फत भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यार इससे निकलना चाहिए ना। मतलब असल मसला ये है कि इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक जो गुनाहगार है, जिसने जुर्म किया है, उसकी हौसला अफजाई हो रही है, और दूसरी जो बेगुनाह अगर पड़ा हुआ है तो बेचारा बेगुनाह सजा काट रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि जितने जेलों में सारे शायद कसूरवार हो, उसमें ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो किसी गलती से पुलिस हमारे यहाँ होता है। एक तो ये उसको जल्द से निपटाना चाहिए। मसला ये कि हम अदलिया का क्या करें। हमारी अदलिया जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही है, शकील बात कर रहे थे, देखिए 14 और 15 मार्च मेरी नज़र में 9 मई से बड़ा वाक़या था। मैं बार बार कह रहा हूँ, 14 और 15 मार्च को अदालत का अरेस्ट वारंट लेकर पुलिस पहुंची थी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी पीछे हट जाओ। भाई जो रियासत को चैलेंज कर रहे थे, हसान न्याजी का जिगरा क्यों बढ़ा कि उसने पतलून लहराई थी? क्योंकि जब 14 मार्च को पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी, हसान न्याजी साहब ने लिबर्टी से जत्था इकट्ठा किया या दूसरी तरफ से, और पीछे से आके पुलिस पर अटैक किया। कुम्मक लेकर आए वो इन्होंने, क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, और ख़ास तौर पर जो आपके इलाके मियाँ मीर साहब वाले, यहाँ पे लोग बाहर से लाकर ठहराए हुए थे, वहाँ पर उन्हें लोग रखे हुए थे। और फिर इस वक्त के लिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर हमारे लोग बाहर आएंगे। और इसी तरह हुआ।
उन लोगों अच्छा को- नहीं, वैसे तो इंक्वायरी ऑलमोस्ट फौजी अदालतों में तो मुकम्मल है, ट्रायल भी मुकम्मल है, और फैसला आना है बस। देखिए वो अदालत सुप्रीम कोर्ट, देखिए ना मैं यार नहीं- सुप्रीम कोर्ट ने रोका है नहीं, कि लेकिन इमरान साहब उठी, वहां पे गया कौन हुआ? देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुन तो गया ले, कौन हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 85 लोग हैं अपना फौजी अदालतों में। एंटी टेररिस्ट कोर्ट को किसने रोका है? सर बस आप अपने निजाम को भी देखें। हाँ सर, हाई कोर्ट ने ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्ट इमरान खान ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ नहीं ਹੋਏ मेरा ख्याल है अपना उसमें नहीं मैं जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को हर जगह है, नहीं बाकी इदारों में हर जगह है, मतलब हर जगह बैठे हैं। पॉपुलर नहीं है, बैठा हुआ है। पॉपुलर नहीं है। रहील शरीफ प्रोजेक्ट साजी है ना 4-50 साल नहीं की। ठहरो, मुझे नहीं, आप या लोग इशफाक बात परवेज करते कियानी, हो, उसकी नफी कर रहे हो। इशफाक परवेज कियानी यार ने, देखो, रहील शरीफ ने, यार देखो, ज़हीरुल इस्लाम ने, यार शुजा देखो, पाशा ने, जनरल फैज ने केड़ी नफी की थी? देखो वो जाके सर जिनका नाम मौलाना नहीं, शाह ठहरो। ने लिया था, उनका नाम भी तो लेना। किधर? मौलाना शाह शाह जी, साहब ने जिनका बताया था शाह जी, 90s की दहाई में, उनका बताएं। शाहजी ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। चलो अच्छा मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो है उनमें मुकदमात के ऊपर कोई स्टे नहीं है। स्टे होता तो जज्जा नहीं करना है ना। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ ना, सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जो है हौसला अफजाई कर रहा है ना सिस्टम, तो उस सिस्टम को तगड़ा करे, कोई हुकूमत कोई कानून साजी करे अगर नहीं चलता तो ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए मामले को। अच्छा मैं ना इसमें अगर जज साहब जाके वहाँ पे जेल में मुर्शद का दीदार करें और वहाँ पे जाके जनाब आर्डर जारी करें कि मेरे मुर्शद को यहाँ पे फ्रिज अभी ला के दो, तो सर क्या किया जाए? जज ने जुतियां मारनियां चाहिए। जी वो कीता ना उन्होंने बल्कि नहीं मारियां, बल्कि अस्मा बुखारी से यही मैंने सवाल किया था, लेकिन अफसोस कि पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं, वो जज्जां को डरदी। अगर मुर्शद ने ये कह दिया कि मुझे इतने हुजरा बना के दे, मैंने इबादत करनी है धुएं वाली, तो वो भी हो जाएगा। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਣੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਣੇ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਸੂਵੀਆਂ, अच्छा चले दाल, चले पुतले। देखे मेरी बात सुने मैंने अभी बैठे हुए तजिया किया। एक तो मेरी आवाज बुलंद हुई, उस पर मैं अहबाब से माजरत चाहता हूं। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗੋ ਸਾਨੂੰ ही गाड़ी, ठीक है, ਸਾਨੂੰ मैं आपसे सामने हालत है, माजरत ये चाहता हूं, ठीक है। आपका वक्त है। अच्छा। मैंने फिर इसका एनालिसिस किया कि ये होता क्यों। हाँ। ठीक है, होता यूँ ऐसे है कि हम एक बात शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो बरगज़ीदा लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, उनकी चेहरे से फूल नूर उभरता है, हाथ में उन्होंने तस्बीह पकड़ी होती है जैसे हमारा इमरान खान है। असल में तकलीफ़ यहाँ पे होती है कि आप एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट बिल्डअप करके आखिर में अपना गंद बेचने की कोशिश करते हैं। गुफ्तगू में संजीदगी रखने के लिए आप वो आर्गूमेंट बिल्ड कीजिए, शख्सी आज़ादियों का जैसे भाई ने किया। जब आप ये करते हैं ना तो वो उस पर बाकायदा तकलीफ़ होती है। आप अपना आर्गूमेंट बिल्ड कीजिए माइनस उसके करके, किसी शख्सियत को माइनस, किसी शख्सियत को माइनस सर, करके। देखो जो मैंने अपनी तकलीफ की वजह बता दी है। हाँ। आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं करके। हम इतने बड़े मसले में हैं, 9 मई का सानिया हो गया और उसके असल मुजरिम अगर हम ढूंढना चाहें तो वो बाजवा साहब, फैज़ साहब, कियानी साहब, राहिल शरीफ साहब और पता नहीं कहाँ तक जाती है। और ये वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन पर हम हाथ नहीं डाल सकते। ठीक है, मजबूरी है, जो मर्ज़ी करें, मजबूरी है हमारी। ठीक है, हमारी सियासतदानों की कमज़ोरी है, उनकी ताकत है, जो मर्ज़ी कह लें। मसला तो छोटे छोटे से मसले देख लें, ताज़ा तरीन कि एक सेशन जज अगवा हो गए और 5 करोड़ पे या 50 करोड़ पे मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि वो पैसे दे के केपी में वहाँ वो बच्चे उनको अगवा को छुड़वाना पड़ा। अच्छा दूसरी चीज़ नहीं, सिंध में बच्चा अगवा हुआ है, वो कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया, उसको जंजीरों से लटकाया हुआ था और उसके बाद पता चला उसको भी पैसे देकर हमने छुड़वा लिया, किसी तरह छुड़वा लिया। ज़ाहिर है पैसे देकर ही छुड़वाया होगा ना, या वैसे बहुत अच्छी दोस्ती होगी। जैसे केपी के जो तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी तालिबान से बहुत अच्छी दोस्ती, इस तरह हो सकता है यहाँ भी किसी की दोस्ती हो कच्चे के डाकुओं से। मुसीबत ये है कि और अच्छा शुमाली वज़ीरिस्तान में बच्चियों का स्कूल था, वो उसको बम धमाके से उड़ा दिया गया। अच्छा वो जज को छुड़वा लिया, पैसे दे के बंदे की इंसान की जान बचानी थी, बिल्कुल मुमकिन है। ये बच्चे को भी किसी डील के तहत छुड़वा लिया होगा। गुज़श्ता कुछ अरसे में मैंने अपनी हुकूमत की या अपनी फ़ौज की ताकत देखी है कि इंडिया ने हमला किया, हमने फ़ौरन जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, ज़बरदस्त काम, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ईरान की तरफ से शरपसंदी हुई, हमने भरपूर जवाब दिया,
اس کی باقی موڈیلٹیز پہ ہمیں اعتراض جو ہم کہتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ انوالو نہیں تھی یا تھی، ساری چیزیں چھوڑ دیں، بٹ ایک زبردست جواب کیا یار یہ ڈاکو یہ طالبان جو ہمارے اندر بس رہے ہیں ہم اس کے بعد جا کر نہیں ان کو پکڑ سکتے؟ پھر اس کا مطلب ہے کوئی سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سسٹم میں. تو اگر ہماری اسٹیٹ اتنی کمزور ہے ود ان کنٹری جو ہے تو پھر تو کوئی چیزیں نہیں ٹھیک ہونی. پھر یہ عمران خان تو ایک بہت بڑا جن بنا لیا تھا نا ہم نے. اگر ہم کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے، اگر ہم، اور یہی کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، کل عدم تنظیموں کے لوگوں کے جا کے مسئلے حل کروا رہے ہیں، ان کے جرگے کروا کے پیسے لے کے جرگے لے کے وہ کام کرا رہے ہیں. اچھا جس دن کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو جائے گا جیسے یہ سیشن جج والا ہوا ہے تو یہاں بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو حکومت کو سوچنا چاہیے کوئی تھوڑا سا اپنا وہ سٹینڈ لے اور پارلیمنٹ اچھا حکومت سوچ رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ہم نے کس طرح ریٹین کرنا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کس طرح ریٹین کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اور کیوں کرنا ہے. بڑا اہم سوال ہے، اس پر ہم نے بات کرنی تھی، میرے ذہن میں یہ والی باتیں تھیں لیکن ٹائم بہت ہو گیا. انہوں نے بھی جانا ہے اور انہوں نے زیادتی کی تھی. بالکل. تو ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے یاد رکھ لینا یار یہ باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. لیکن اب جمعہ یا ہفتہ وہ ہم کر لیں گے، وہ جمعہ ہوگا یا ہفتہ ہوگا تو وہ ہم آپ کو بر وقت بتا دیں گے، پہلے بتا دیں گے. تو ہفتے دے وچ انہاں دا ایشو ہے گا لیکن چلے ہم ریزالو کر لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.